થોડો લાંબો છે, એટલે હવે આજથી 2 સેશન કરીશું અને 25 તારીખ સુધી આ પૂરું કરી દઈશું. એવું એક્ઝામ પોસ્ટપોન નહીં થાય. એક તારીખ એક તો શું છે કે આ વિષય પણ એવો છે ને, એને જેટલો લાંબો કરશો ને કોઈ વધારે અર્થ નથી. એટલે આ ફરે એક્ઝામ ખાલી એક પરંપરા નિભાવવા માટે જ એક્ઝામ લઈશું કે એક સામાન્ય 50 જ પ્રશ્ન બનાવીશું અને આને આ વિષયને કે આગળનો વિષય છે ને એ આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એને આપણે નહીં તો આ ફેબ્રુઆરી સુધી ચાલશે આ વસ્તુ. એટલે પછી ફેબ્રુઆરીમાં આ આખી જૈન સિદ્ધાંત પ્રવેશિકા આપણે પૂરી કરવાની છે. અંતિમ પેપર ફેબ્રુઆરીના શિબિરમાં લઈ લઈશું. એટલે અત્યારે એક્ઝામનો કોઈ એવો વિશેષ ભય નહીં રાખતા, એમાં જે ઉપર મુખ્ય વસ્તુઓ છે એના જ ઉપર આપણે એક્ઝામ લઈશું. કોઈ ઘણું ડિટેલ આપણે આ તો સ્વાધ્યાય ડિટેલ કરીએ છીએ, પણ એમાંથી આ ગુણસ્થાનમાં આટલી પ્રકૃતિનો આ છે ને પેલો છે ને એ બધો એમાં કોઈ પ્રશ્ન નહીં આવશે એમાં, કેમ કે એટલું બધું યાદ પણ નહીં રહે વ્યક્તિને. એટલે ઉપર આપણે લઈશું, પણ સમજવાનું બરાબર છે. એટલે આપણે સમજણ માટે સ્વાધ્યાય લઈએ છીએ આખી વસ્તુ. એટલે કોઈ પણ પ્રકારનો પરીક્ષાનો ભય નહીં રાખતા, અને પાછી પરીક્ષા બધાને આપવાની છે એટલે જોયા વગર. એકચ્યુઅલી પરીક્ષાને જોયા વગર જ હોય. આપણે જોઈને એનો અર્થ જ નથી રહેતો કે એમાં દિમાગ લગાવવું જ નહીં પડે તમારે. જોઈને તો ખાલી આપણે ટીપવાની વસ્તુ છે, અહીંયાથી ઉઠાવીને આપણે ક્યાં નંબરોનું મહત્વ છે. અને તમે કહો તો નંબર આ ફરે સાંભળાવીએ જ નહીં, ખાલી એક્ઝામ જ લઈએ. પહેલાં આપણે એવી નાની પરીક્ષા લેતા, ખબર છે, કર્મ પ્રકૃતિઓનું ચાલતું હતું, તો તરત જ પેપર આપતા અને તરત જ 1 કલાકમાં ભરીને પાછું આપવા. એનું નામ પરીક્ષા છે. પણ આપણે આ બરાબર સમજીશું, 3 દિવસમાં લગભગ થઈ જશે. આ બધી વસ્તુ સમજવાની છે. એટલે સ્વાધ્યાય હશે તો ક્યારેક ફરીથી પણ આપણે એને સમજી શકીશું. એટલે સ્વાધ્યાય બરાબર કરીએ આપણે ડિટેલ. ઓ અનંત ભાવ ભેદથી ભરેલી ભલી અનંત નાય નિક્ષેપે વ્યાખ્યાની છે. સકલ જગત હિત કારિણી હારિણી મોહ તારિણી ભવાબ્ધિ મોક્ષ ચારિણી પ્રમાણી છે. ઉપમાપ્યાની જેને તમારા ખવીતે વ્યર્થ આપવાથી નિજ મતિ માપાઈ મેં માની છે. અહો રાજ ચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામતાય જીનેશ્વર તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે. ગુરુ રાજ તણી
વાણી જાણી તેણે જાણી છે. નત્વા જિનેન્દ્રમ ગતસર સર્વજ્ઞદેવં હિતદર્શકં ચ શ્રીજૈન સિદ્ધાંત પ્રવેશિકેર્યં વિરચતે સ્વલ્પધિયાં હિતાય વિરચતે સ્વલ્પધિયાં હિતાય. ઓ જય सद्गुरु वंदन. जय. तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका अध्याय 4 प्रश्न संख्या 527 हिंदी, गुजराती में 524. चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों के उपशमाव तथा उपशमावने तथा क्षय करने के लिए आत्मा के कौन से परिणाम निमित्त कारण हैं? तो चारित्र मोहनी की जो 21 प्रकृतियों का उपशम करने अथवा क्षय करने के लिए आत्मा में कौन से परिणाम निमित्त होते हैं, कैसे भाव होते हैं, तो उन कर्मों का उपशम अथवा क्षय होता है. तो उसमें 3 परिणाम कहे: अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण. अब इसका एक एक का डिटेल. 528. अधःकरण किसको कहते हैं? जिस करण में परिणाम समूह में ऊपरी तन समयवर्ती तथा अधस्तन समयवर्ती जीवों के परिणाम सदृश तथा विसदृश हो, उसको अधःकरण कहते हैं. यह अधःकरण 7वें गुण स्थान में होता है. अभी ये 3 जो परिणाम कहे हैं वो गुण स्थान है. वो जो तीनों गुण स्थान, उसमें अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और उसके पहले जो 7वें गुण स्थान में अधःकरण होता है, वो कंपैरेटिव कहे हैं, सापेक्ष कहे हैं, नाना जीवों की अपेक्षा से कहे. पर वास्तव में काम क्या होता है, पहले तो ये जो कहा है उसको समझेंगे, फिर वास्तव में इसके अंदर काम क्या होता है वो समझेंगे. तो प्रायोग्य लब्धि प्राप्त करके योग्य हो गया. ये तीनों करण परिणाम सम्यक्त्व के पूर्व भी होते हैं और ये तीनों परिणाम श्रेणी चढ़ने के पूर्व भी होते हैं और दोनों में काम एक जैसा होता है. यहाँ गुण स्थान आरोहण के लिए है, वहाँ मिथ्यात्व को मारने के लिए है, पर ये दोनों का काम, दोनों का प्रकृति सब समान है. तो अधःकरण में जो लब्धि के बाद होता है, 5वीं लब्धि के बाद, उसमें कर्मों की स्थिति जब आयु कर्मों को छोड़ करके शेष कर्मों की स्थिति जब अंतः कोड़ा कोड़ी कर लेता है तो इस करण परिणामों में प्रवेश करता है. तो वो अधःकरण में प्रवेश करेगा. इस अधःकरण में होगा क्या, तो समय समय अधःकरण जो होता है उसका समय अंतर मुहूर्त है. तो अंतर मुहूर्त में जितने समय होते हैं उतने समय में समय समय अनंत गुनी विशुद्धि होती है. ये काम सब में होगा. पहले समय में जितनी विशुद्धि हुई, इससे अधिक विशुद्धि, अनंत गुनी विशुद्धि दूसरे समय में, फिर तीसरे समय में, फिर चौथे समय में, ऐसे विशुद्धि समय समय होती रहती है. विशुद्धि होती रहती है तो होता क्या है उसमें, तो विशुद्धि का मतलब ऐसा समझना कि पाप प्रकृतियों का जो अनुभाग है
वो समय समय अनंत गुना हीन होकर के आना। पाप प्रकृतियों का जो अनुभाग है वो समय समय अनंत गुना हीन होकर के आना, इसका नाम विशुद्धि कहलाता है। और पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग है वो अनंत गुना बढ़ते जाना। पाप प्रकृतियां घटते जाना और पुण्य प्रकृतियां बढ़ते जाना। अब पाप प्रकृति और पुण्य प्रकृतियों में ये जो अघातियां होती हैं, घातियां वगैरह, उसमें चार चार स्थान कहे हैं सबके। पाप प्रकृतियों के चार स्थान कहे, एक निम्ब, कांजी, विष और हलाहल। ये पाप प्रकृतियों के स्थान है। सबसे कम पाप प्रकृति होती है वो निम्ब। निम्ब का मतलब होता है कि नींबू का रस होता है ना, हाँ, तो वो इतना कड़वा नहीं होता है, होता तो है थोड़ा थोड़ा, पर खटास के साथ वो थोड़ा होता है। कांजीर होता है वो, इससे थोड़ा कड़वापन अधिक होता है उसमें। फिर विष होता है, उसमें इससे अधिक कड़वापन होता है। और फिर हलाहल होता है। हलाहल विष का मतलब ऐसा होता है कि आप चखो तो तुरंत मर जाओ, उसका स्वाद बताने के लिए भी जीवित नहीं रहोगे। हाँ, हलाहल। तो ये कड़वाहट मतलब ये अनुभाग है, ये अनुभाग है। पाप प्रकृति कैसी होगी कि नीम के जैसी होगी, कांजीर के जैसी होगी, कि विष के जैसी होगी, के हलाहल के जैसी होगी। ये इसकी तीव्रता के आधार पर है। तो प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान और चतुर्थ स्थान। तो इसमें क्या करता है कि अधःकरण में वो जो कर्मों का जो अनुभाग पाप प्रकृतियों का वो द्विस्थानीय कर देता है। अब नए कर्म बंधेंगे वो निम्ब और कांजीर के अनुभाग शक्ति वाले ही बंधेंगे, आगे विष और हलाहल वाली कड़वाहट वाले नहीं बंधेंगे। अर्थात तीव्र अनुभाग शक्ति वाले पाप कर्म बंधेंगे नहीं। ये अधःकरण परिणामों से होता है। और साता में क्या होता है, उसके भी चार स्थान हैं, गुड़, शक्कर, खांड और अमृत। गुड़, शक्कर, खांड और अमृत, ये चार प्रकार है। ये बढ़ती बढ़ती मिठास है। क्या है इसमें बढ़ती बढ़ती? गुड़ में कम मिठास है, फिर शक्कर में उससे अधिक मिठास है, खांड में उससे अधिक मिठास है, और अमृत में सर्वाधिक मिठास है। तो ये पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग शक्ति है। तो पुण्य प्रकृतियों में वो जो तीसरा और चौथा अनुभाग बांधता है, पहला और दूसरा बांधता नहीं है, क्योंकि विशिष्ट अनुभाग को बांधता है। ये इस अधःकरण परिणामों में होता है। इतने काम इस अधःकरण परिणामों से होते हैं। ये अधःकरण का स्वरूप है कि ये यहां तक ये क्या कितने काम बताए? प्रति समय अनंत गुनी विशुद्धि होती है। फिर दूसरा काम क्या बताया? प्रति समय पाप प्रकृतियों का अनुभाग हीन मतलब निम्ब और कांजीर घटता घटता आएगा। नए बंधने वाले कर्मों में पाप कर्मों की प्रवृत्तियों को द्विस्थानीय करता है, और पुण्य कर्मों की प्रकृतियों को वो त्रिस्थानीय और चतुर्स्थानीय कर देता है। ये चार काम होते हैं, वो इस अधःकरण परिणामों से होते हैं। अब जो यहाँ कहा है इसमें कि इस करण में प्रवेश किया, तो मान लो दो जीवों ने प्रवेश किया। एक जीव ने अभी प्रवेश किया, दूसरे जीव ने 2 मिनट बाद प्रवेश किया, दोनों के। तो अभी जो नया प्रवेश कर रहा है वो, और 2 मिनट बाद में जो प्रवेश करेगा वो,
उन दोनों के परिणाम शुरू किए हैं वो और 2 मिनट बाद शुरू करेगा वो, इन दोनों के परिणाम भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं और एक जैसे भी हो सकते हैं। शुरू किया उसके जैसे परिणाम हैं, 2 मिनट बाद किसी ने शुरू किया तो पहले वाले के जैसे ही परिणाम वो भी कर सकता है, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। इसलिए यहाँ कहा कि ऊपरी तनवर्ती और अधस्तनवर्ती का परिणाम सम भी होते हैं और विषम भी होते हैं, सदृश्य भी हो सकते हैं और विसदृश्य भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये परिणामों की अपेक्षा है कि पहले चालू किया परिणाम तो उसको जैसे जैसे आगे जाएगा तो 2 मिनट बाद उसके तो बहुत विशुद्ध परिणाम होते जाएंगे। अब किसी ने 2 मिनट बाद ही चालू किया है तो वो उसके साथ 2 मिनट तक उसकी जो विशुद्धि हुई और 2 मिनट के अंतिम समय में जो विशुद्धि हुई, उतनी ही विशुद्धि ये पहले ही समय में प्राप्त कर सकता है कोई जीव। बात समझ में आ रही? इसको अधःकरण कहते हैं। ये कंपैरेटिव सारी चीजें, ये इसका ये काम है। इससे अधिक इसको आगम में भी कोई खोला नहीं है। बाकी इसमें क्या क्या होता है, कितना ये सारी चीजें बहुत डिटेल हैं, अभी इसको नहीं लेने। हाँ, प्रश्न છે તમારો? એટલે આમાં 7મા ગુણસ્થાનની વાત લખી છે, એટલે શ્રેણીની વાત કરી છે, અને આપે જે વાત કરી એ सम्यक्त्व पहलानी दशा में पण आज परिणामों से दोनों का काम स्वरूप एक ही, एक सिरके है, एक ही है। जैसे कोई व्यक्ति अभी श्रेणी चढ़ा और कोई व्यक्ति 2 मिनट बाद श्रेणी चढ़ता है, तो अभी श्रेणी चढ़ा वो 2 मिनट बाद में उसके जो परिणाम होंगे वही परिणाम कोई वर्तमान में अभी श्रेणी चढ़ रहा है पहले समय में, वो परिणाम हो सकते हैं इसके अधःकरण में। उस प्रकार के परिणाम उसके हो सकते हैं अथवा नहीं भी हो सकते हैं। इसमें असंख्यात परिणामों की संख्या असंख्यात गुनी है, भिन्न भिन्न प्रकार के परिणाम होते हैं। दोनों में कोई भी श्रेणी चढ़ रहा है, या तो क्षपक श्रेणी चढ़ रहा है वो भी, और उपशम श्रेणी चढ़ रहा है वो भी, दोनों में परिणामों में मतलब कोई 7 स्पीड की बात है, विशुद्धि की बात है कि जो पहले चालू किया है और कुछ समय हो गया और जो बाद में चालू करता है तो वो जो जहां पहुंच रहा है जिस विशुद्धि में, उसी विशुद्धि में पीछे वाला भी हो सकता है। ऐसा उस विशुद्धि को वो पीछे वाला भी प्राप्त कर सकता है। अपूर्वकरण 529। जिस करण में उत्तरोत्तर अपूर्व ही अपूर्व परिणाम होते जाएं, अर्थात भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम सदा विसदृश्य ही हो और एक समयवर्ती जीवों के परिणाम सदृश्य भी हो और विदृश्य भी हो, उनको अपूर्वकरण कहते हैं। यही 8वां गुणस्थान है। अब अपूर्वकरण का मतलब अपूर्व, अपूर्व पहले समय में जो परिणाम हुए थे उससे अपूर्व दूसरे परिणाम, दूसरे समय में, तीसरे समय में, चौथे समय में। अब जब अपूर्व अपूर्व परिणाम होते हैं, आगे पीछे होते ही नहीं हैं, तो जो इस समय चालू किया है जिसने अपूर्वकरण चढ़ना, तो उसके परिणाम अलग ही होंगे, और जब बाद में चालू किया है तो उसके परिणाम भी अलग ही होंगे। दोनों के अपूर्व अपूर्व हो रहे हैं, इसलिए एक जैसे परिणाम इसमें होंगे नहीं, अलग अलग होंगे। इस गुण स्थान में क्या होता है? तो इस गुण स्थान में 4 काम होते हैं। स्थिति कांडक, अनुभाग कांडक, गुण श्रेणी और गुण संक्रमण, ये 4 बातें। स्थिति कांडक का मतलब होता है समय समय पर सत्तागत कर्मों की स्थिति को कम करते जाना, उसको स्थिति कांडक कहते हैं। स्थिति कांड का मतलब स्थिति को कम करना, कि अधिक अधिक स्थिति है तो प्रति समय उसकी स्थिति को कम करता जाता है। अनुभाग कांडक में
प्रति समय अनुभाग को कम करता जाता है। उसके जो प्रकृतियां हैं उसके अनुभाग को कम करता जाता है। पाप पुण्य प्रकृतियों में तो अनुभाग कम होगा नहीं, केवल स्थिति ही कम हो सकती है। और पाप प्रकृतियों में दोनों हैं, अनुभाग भी कम हो सकता है और स्थिति भी कम हो सकती है। पुण्य प्रकृतियां ऐसी वस्तु हैं कि पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग किसी भी परिणामों से कम नहीं किया जा सकता। पुण्य प्रकृति आपने जो बांधी है तो वो आपने जो बांधी है उसी प्रकार से वो विपाक आपका आएगा। उल्टा उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, कम नहीं कर सकता वो। भले स्थिति को कम करे पर अनुभाग है, वो उस अनुभाग को आपको वेदन करना ही है। इसलिए जब श्रेणी चढ़ता है उस समय भी पाप प्रकृतियों, ये अपूर्वकरण परिणाम से क्या करता है, पाप प्रकृतियों की स्थिति तो कम कर देता है और उसका और पुण्य प्रकृति की वो स्थिति कम कर सकता है। पर अनुभाग जितनी तीव्रता का उसको साता का वेदन करना है उतनी तीव्रता का साता का वेदन उसको हो करके ही रहेगा, भले उसको जल्दी मोक्ष जाना है। तो कोई कर्म है पुण्य प्रकृति, वो लंबे समय तक उसको उदय में आने वाली थी, स्थिति बहुत थी, और उसको तो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रगटाना है और फिर मोक्ष भी जाना है। तो वो क्या करेगा, तो श्रेणी में शुद्धोपयोग के परिणामों से स्थिति कम कर देगा और उस अंतर मुहूर्त में वो जितनी साता जो लंबे समय तक भोगने वाला था, वो तीर्थंकर बनकर के कितनी साता भोगने वाला था, वो उन सब को केवली बन के, तो उन सारी साता को वो अंतर मुहूर्त में वेदन कर लेता है स्थिति कम करके। परंतु वो जितनी बांधी है वो साता का वेदन जरूर करेगा, उसके अनुभव से वो बच सकता। इसलिए पुण्य प्रकृतियों का तो नाश, पुण्य प्रकृति के अनुभाग का नाश है, वो शुद्धोपयोग से भी होता नहीं है। और शुद्धोपयोग के समय में तो उत्तरोत्तर क्या होगा, उत्तरोत्तर उसका योग प्रशस्त है, इसलिए और अधिक प्रशस्त प्रकृतियां बांधती जाएंगी, परंतु उसकी स्थिति बहुत कम करके वो वहीं के वहीं भोग लेता है और आगे की स्थिति रही ही नहीं इसकी। इसलिए आगे तो अब प्रशस्त योग भी नहीं है, इसलिए वो बंधेगा भी नहीं। इसलिए 14वें गुण स्थान में वो कोई भी प्रकृति बंधती भी नहीं है उसकी प्रशस्त प्रकृति, और इसलिए वहां पर वो मुक्त हो जाता है। 13वें तक तो प्रशस्त प्रकृति का बंध होता है, साता वेदनीय का प्रति समय बंध होता है। बंध का मतलब इरियापत आश्रव, और आगे तो होता भी नहीं है उसका, एक समय के लिए भी नहीं। तो ये हो गया स्थिति कांडक, अनुभाग कांडक। फिर गुण श्रेणी, गुण श्रेणी निर्जरा। तो अपूर्व करण में अभी अधकरण तक गुण श्रेणी निर्जरा नहीं हो रही थी, अब अपूर्व करण में गुण श्रेणी निर्जरा चालू हो जाती। 2, 4, 16 इस प्रकार से समय समय उसकी गुण श्रेणी निर्जरा होती है। और गुण संक्रमण, गुण संक्रमण का मतलब होता है पाप प्रकृतियों का पुण्य प्रकृतियों में संक्रमण होना। ये 4 काम अपूर्व करण में होते हैं और इससे इनकी स्थितियों को उपशमित कराता जाता है अथवा क्षय करा जाता है। इस संबंध में कोई किसी को प्रश्न? हाँ, माइक आप। विशुद्धि तो अधकरण में भी समय समय बढ़ती जाती थी, हाँ, तो अपूर्व अपूर्व में फिर वही तो काम हुआ, वो दोनों में क्या फर्क हुआ? ऐसा है, पहले करण से द्वितीय करण की विशुद्धि अधिक होती है। इसमें ऐसा होता है कि अधकरण पूरा हुआ और अपूर्व करण चालू हुआ, तो अधकरण के अंतिम समय में जो सर्वोत्कृष्ट विशुद्धि थी, अधकरण के अंतिम समय में जो सर्वोत्कृष्ट विशुद्धि थी, अपूर्व करण के पहले समय में उससे अनंत गुनी है।
अधःकरण के अंतिम समय में जो विशुद्धि थी उससे अधिक अपूर्व करण के पहले समय में उससे अनंत गुने अधिक विशुद्धि, और फिर अपूर्व करण के प्रत्येक समय में अनंत गुनी, और जब वो अनिवृत्तिकरण में आता है वो जीव, तो अपूर्व करण के अंतिम समय में जो सर्वोत्कृष्ट विशुद्धि थी इससे अनंत गुनी विशुद्धि अनिवृत्तिकरण के पहले समय में, ये विशुद्धि है। अनंत गुनी विशुद्धि तो बढ़ती जाती है, पर करणों के साथ और आगे आगे की विशुद्धि बढ़ती जाती है। और उसको अपूर्व नाम इसलिए दिया कि वो पहले ऐसी कभी भी नहीं हुई, ऐसा? हाँ, पहले ऐसे परिणाम उसके कभी हुए नहीं। अधःकरण में भी ऐसा हुआ होगा ना कि पहले जैसा कभी आया नहीं था अधःकरण में भी परिणाम। अधःकरण में जब लब्धियों के परिणाम होते हैं तो ऐसा कहते हैं, ऐसा कि जीव अधःकरण में आकर के लौटा, अधःकरण में आकर के तो वो लौटा है, परंतु जब वो अपूर्व करण में जाता है तो फिर कभी लौटता नहीं, वो आगे के आगे जाता है इस अपेक्षा से। अब इसी प्रकार से हाँ, વિશુદ્ધિ અને શુદ્ધિ એટલે આ કર્મની અપેક્ષાએ વિશુદ્ધિ અને આત્માની અપેક્ષાએ શુદ્ધિ? नहीं, शुद्धि विशुद्धि एक ही है। जब तक प्रोसेस चल रहा है तो हम उसको विशुद्धि कहते हैं, और प्रोसेस पूरा हुआ तो हम उसको शुद्धि कहते हैं। तो हम उसको 10वें गुण स्थान तक विशुद्धि कहते हैं, और 11वां 12वां गुण स्थान आ गया तो हम उसको शुद्धि कहते हैं कि आत्मा शुद्ध हो गया। उसके पहले वो विशुद्ध होता जाता है। तो पाप प्रकृतियां घटती जाती है, पुण्य प्रकृतियां भी, पुण्य भाव बढ़ते जाते हैं, और शुद्धि भी उसकी कर्मों की निर्जरा संवर निर्जरा होती है, तो ये निरंतर विशुद्धि बढ़ती है, उसको कहते हैं। वास्तव में विशुद्धि का मतलब जो पुण्यानुबंधी पुण्य, संवर और निर्जरा, ये तीनों का समवेत नाम विशुद्धि है। कि जहां पुण्य भाव भी हो रहे हैं, शुभोपयोग है, और उसके साथ साथ शुद्धोपयोग भी है, ये दोनों मिल करके विशुद्धि कहलाती है। तो पहले के गुण स्थान में मुख्य रूप से शुभोपयोग है, उसी का नाम विशुद्धि है। जैसे जीव तत्व चिंतन कर रहा है तो ये विशुद्धि हो रही है उसकी, जितना अपना तत्व चिंतन होगा, क्योंकि तत्व चिंतन में राग द्वेष का बंध नहीं हो रहा है। न किसी से जीव राग कर रहा है, न किसी से द्वेष कर रहा है, परंतु प्रशस्त मनोयोग है वहां पर, इसलिए उसके पुण्य बंध भी जबरदस्त हो रहा है, और संवर निर्जरा भी हो रही। अगर वो सम्यक्त्व सहित है तो उसकी संवर निर्जरा भी हो रही है, और अगर सम्यक्त्व रहित है तो उसके निरंतर पाप प्रकृतियां घट रही हैं, पुण्य प्रकृतियां बढ़ रही हैं, और उस तत्व चिंतन में फिर वो जो लब्धि में फिर बंधापसरण होते हैं। अधःकरण परिणामों के पूर्व प्रायोगिक लब्धि में 34 प्रकार के बंधापसरण कहें, ये सम्यक्त्व के पूर्व की बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं। बंधापसरण का मतलब होता है उन 34 स्थानों में बंध है वो रुक जाता है। अब अमुक अमुक प्रकृतियों का बंध होगा नहीं, उसको बंधापसरण कहते हैं। तो वहां सब वो पुण्याधीन ही चलता है, और जब सम्यक्त्व सन्मुख जीव होता है तो वहां पर करण लब्धि में जब प्रवेश करेगा, फिर वहां से उसकी असंख्यात गुनी निर्जरा वो चालू हो जाती है, करण लब्धि में आगे अपूर्व करण। नहीं, वेदनीय कर्म भुगतना ही पड़ेगा ऐसा नहीं है, कोई भी कर्म भुगतना ही ऐसा नहीं है। अगर कर्म उदय में आ गया तो भुगतना है, उदय में नहीं आया तो उसका कुछ भी करो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं ऐसा। परंतु आपने बांधा है, क्या बांधा है? साता वेदनीय को, साता वेदनीय को बांधा है तो आपको उसको भुगतना है, और असाता वेदनीय है वो आपने बांधा है तो आप उसको
साता में कन्वर्ट कर सकते हो, आपको असाता भोगनी ही है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पर साता तो आपको भोगनी ऐसा। पर कोई कंडीशन ऐसी हो कि आपने साता को भी असाता कर लिया तो आपने उस साता को भी भोग नहीं रहे हो, असाता को ही भोग रहे हो, क्योंकि संक्रमण दोनों तरफ से होता है। साता का असाता में भी होता है और असाता का साता में भी होता है। परंतु आगे के गुण स्थानों में, श्रेणी वगैरह में अब असाता का साता का असाता में नहीं होगा, क्योंकि उनके परिणाम वर्धमान ही हो रहे हैं, पाप परिणाम तो हो ही नहीं रहे। इसलिए असाता को साता में कन्वर्ट कर देता है, इसी का नाम गुण संक्रमण कहलाता, और वो साता रूप में सबको वेदता है। और मुख्य वस्तु ये है कि वेदन करने वाला होना चाहिए ना। कल बात चली थी ना, किसी भी कर्म को भोगने के लिए भोक्ता होना चाहिए, और आगे के गुणस्थान में भोक्ता नहीं रहता है। आगे के गुणस्थान में क्या हो जाता है, वो ज्ञाता हो जाता है। ज्ञाता किसी को कैसे भोगेगा? तीर्थंकर के सबसे अधिक पुण्य का उदय चलता है, तो क्या तीर्थंकर उसको भोग रहे हैं? उनको कुछ पड़ी नहीं है कि कोई देव आ रहे हैं कि मेरे को नमस्कार कर रहे हैं। कर्म को भोगना नाम उसका है कि जब उस कर्म के उदय से हम प्रभावित हो, तो उसका नाम भोगना हुआ। पर हम उस कर्म के उदय से किंचित भी हमारे परिणाम प्रभावित होते नहीं है, तो हमने भोगा कैसे? भोगा ही नहीं। हमने पहले किसी की निंदा की थी, अब कोई हमारी निंदा कर रहा है, परंतु हम शांत समता भाव में हैं, तो क्या हमने भोगा? कोई फर्क नहीं इसका। और अगर आप उससे प्रभावित हो रहे हैं तो इसका मतलब आपने पूर्व कर्म को, भोगने वाला हमेशा वर्तमान आत्मा होता है, और अगर आपने वर्तमान आत्मा को संभाल लिया, आपने पूर्व में कुछ भी किया हो, उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। इस मूल वस्तु को हमेशा ध्यान रखें। लोग डरते हैं, હવે પૂર્વે આટલા બધા કર્મો કર્યા છે ને આગમમાં તો એમ આવે છે કે કર્મો કર્યા જે ભૂતકાળમાં જન્મો લઈ તે કર્મનું ફળ ભોગ્યા વેણ छुटको नहीं, ऐसा आता है तो वो डरता है कि अब मेरा क्या। तुम डरो मत, तुम आत्मा बन के रहो। डरते काहे को? हाँ, सम्यक दृष्टि जीव के ऐसी होते हैं कि वो आत्मा बन के रहते हैं, और आत्मा को भोगता थोड़ी, आत्मा भोगता है, मोह भोगता है। कौन भोगता है? मोह आत्मा से अलग तत्व है, उसको हमेशा अलग ही वो एक अहंकार, उस पर्याय में अहंकार है जो मैं बुद्धि, वो मोह है, और वो उसको रही नहीं। जब ज्ञाता हो जाता तो भोगने वाला कौन? तो यहाँ साता का निरंतर अनुभाग उदय में आ रहा है श्रेणी में, तो क्या वो भोगता होगा? उसको कुछ खबर नहीं है उसको कि मेरे को बहुत आनंद आ रहा है, मेरे बहुत स्वस्थता का अनुभव हो रहा है, ऐसा होगा उसको? ऐसा नहीं होगा। वो तो निरंतर अपने समभाव में, समरस में लीन है। पर ये तो वहां परिणाम के उदय कैसे हैं और उसका विपाक कितना है, और विपाक आत्मा में ही आता है, और आत्मा को ही साता करा करके चले जाते हैं। परंतु उपयोग साता को वेदने में नहीं है, उपयोग समता में। अब निरंतर केवली के साता वेदनीय का उत्कृष्ट उदय चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? उत्कृष्ट उदय चल रहा है, पर क्या उसका उपयोग साता को वेद रहा है? उसका उपयोग नहीं वेद रहा है। उसी प्रकार जिसका उपयोग अंतर्मुख होता है वो न साता को वेदता है, न असाता को वेदता है। जीव साता और असाता में ही अटका हुआ है, इसलिए वो समझ ही नहीं पाता है इन सब वस्तु। 430 अनिवृत्तिकरण किसको कहते हैं? प्रश्न। તો જીવને પહેલી વખતે જ્યારે સંકેત થવાનો હોય, પાંચમી લબ્ધિમાં આવ્યો કરણ લબ્ધિ, અને ત્રણ ભાગ કીધા: અધકરણ, અપૂર્વકરણ, અનિવૃત્તિકરણ. અધકરણમાં તો જીવ અનંતવાર આવ્યો છે, બરાબર ને? હા, પણ અપૂર્વકરણમાં એકવાર આવે એટલે फिर वापस नहीं जाए। એટલે અપૂર્વકરણ અનિવૃત્તિકરણમાં એકવાર આવશે એટલે સંકેત એનું નક્કી. ઉપસમ કે પછી જે આગળ पूर्वकरण ત્રણ ભાગ કરીને બધું. अधकरण क्रॉस किया
इसका मतलब समझ जाओ कि आपको सम्यक्त्व તો અધકરણમાં આવેલો જીવ જેને સમયે સમયે શુદ્ધિ વધી રહી છે એ જ્યારે એમાંથી પાછો પડે, પાછો વળે છે, તેની શુદ્ધિ બંધ થઈને પાછી અશુદ્ધિ કે વિભાવ ભાવમાં જશે. હા, તો કેમ જાય છે એમ તમારો પ્રશ્ન છે કે એટલે જશે? એનો પુરુષાર્થની એટલી કમી, એટલે એનો भवितव्य, हाँ, उसका भी योग्य हुआ નહીં. सम्यक्त्व के योग्य नहीं हुआ है, इसलिए वो वापस, जैसे 11वें गुण स्थान से व्यक्ति क्यों गिरता है? केवल ज्ञान के योग्य हुआ नहीं है, उसके वितराग होने के योग्य हुआ नहीं, इसलिए वापस गिरता है. भीतर की वासना है. हाँ, इसका नाम है ये अधकरण है, इसी का नाम यथा प्रवृत्तिकरण. ना दिगंबर में भी ऐसे, हाँ, 2 नाम है इसके, अथा प्रवृत्तिकरण. अथा का मतलब अथ, प्रारंभ हुआ है, ऐसा कि जैसा कभी भी नहीं था पहले, ऐसी अब विशुद्धि का प्रारंभ हो रहा है, इसलिए अथा प्रवृत्तिकरण. वहां यथा भी नहीं है, अथा अशब्द है धवला में. हाँ, हाँ, वो तो ठीक है, यथा हो के तथा हो के व्यथा हो, अथा हो. हाँ, हाँ. अब अनिवृत्तिकरण, जिस करण में भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम विसदृश्य ही हो और एक समयवर्ती जीवों के परिणाम सदृश्य ही हो, उसको अनिवृत्तिकरण कहते हैं. यही 9वां गुण स्थान है. इन तीनों ही करणों के परिणाम प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धता लिए होते हैं. तो यहां पर कि अनिवृत्ति, अनिवृत्ति का निवृत्ति का मतलब होता भेद. जैसे अपने शरीर, आकार वगैरह अलग अलग है, तो उस प्रकार से इस गुण स्थान में कोई गुण, किसी में कोई भेद नहीं है. प्रति समय एक समय में एक ही प्रकार के भाव होंगे सबके. अब जो भी वो भाव करेगा उसके एक ही प्रकार के होंगे. पहले जिसने चालू किए हैं उसके परिणाम प्रति समय एक एक और समान परिणामी होते हैं, उसके असमान परिणाम होते नहीं है. कोई भेद पड़ता नहीं है, चाहे पहले चालू करो चाहे बाद में चालू करो, पर वो परिणाम है आपके, वो एक समान उसके होंगे. अर्थात 9वें गुण स्थान में जिसने पहले 9वें गुण स्थान चालू किया है, उसके पहले समय में जो भाव थे, अब बाद में जिसने चालू किया है तो उसके भी पहले समय में वैसे ही भाव होंगे जिसके जितने पहले के थे, ऐसे ही भाव होंगे. पहले समय के भाव सबके एक जैसे, दूसरे समय के भाव सबके एक जैसे, तीसरे समय के भाव सबके एक जैसे होंगे. ऐसा दरेक जीव के स्वतंत्र है. यहाँ क्या है कि ये एक साथ बहुत से जीव होते हैं ना, एक साथ श्रेणी चढ़ते हैं, तो और कोई आगे पीछे भी चढ़ता है, इनके परिणामों को बताने के लिए किया गया. बाकी इसमें भी 3 काम होते हैं, वही 4 काम, इसमें भी 4 काम होंगे. स्थिति कांडक, अनुभाग कांडक, गुण संक्रमण और गुण श्रेणी. जो अपूर्वकरण में 4 काम हो रहे हैं वही काम इसमें हो रहे हैं. और इसके अंत में ये जो 9वां गुण स्थान है, इसके अंत में क्रोध मान माया लोभ है, उसको नाश करके वो आगे चलता, क्रोध मान माया और 3 को, और फिर अंत में फिर वो 10वें गुण स्थान में चौथे को नाश कर देता है. તો અનંત જીવો મોક્ષે ગયા છે, પણ અત્યારે જઈ રહ્યા છે. જે જીવો આ 9મા ગુણસ્થાનકમાં જે સમય હતા, જે ભાવ એમના, हाँ, દરેક જીવના એ 9માના એ સમય એ જ ભાવ एक હશે, भाव है, बस वही. ભૂત ભાવ કે વર્તમાનમાં. अलग अलग भाव होंगे नहीं. बस शांत भाव, कुछ नहीं करते हो. उनको केवल अपने सहज ज्ञायक का लक्ष्य होता है, सहज ज्ञायक का चिंतन होता है, और कुछ नहीं होता है. वो समता में. हाँ, क्योंकि अब कर्म जा रहे हैं ना,
जैसे जैसे कर्म जा रहे हैं तो विशुद्धि बढ़ेगी। देखो, एक मैं शांत चैतन्य आत्मा हूं, इसी प्रकार का चिंतन एक पहले गुण स्थान वाला भी कर रहा है, एक दूसरे गुण स्थान वाला भी कर रहा है, एक तीसरे गुण स्थान वाला भी कर रहा है, एक चौथे वाला भी कर रहा है, पांचवे, परंतु इनकी विशुद्धि में अंतर होगा कि नहीं होगा? चिंतन तो सब एक जैसा हो रहा है, परंतु पहले गुण स्थान में कर्म प्रकृतियों का उदय अधिक है, तो वहां उस चिंतन के साथ विशुद्धि भी कम है। और जैसे जैसे अब चिंतन प्रगाढ़ होगा और कर्म प्रकृतियां जाएंगी, वैसे वैसे अब उसकी उस चिंतन के साथ विशुद्धि की गहराई भी बढ़ती जाएगी। तो पवित्रता, विशुद्धि, शुद्धि की अनुभूति वहां पर ज्यादा होगी। ये विशुद्धि की तारतम्यता के आधार पर सारी चीजें। એવું કહી શકાય કે એક જ વિષય સ્કૂલમાં ભણતા હોય જુદા જુદા ધોરણમાં, ઇતિહાસ કે ગણિત પહેલા ધોરણમાં હોય ને 8મામાં હોય ને 11માં હોય, એની ઊંડાઈ જુદી જુદી હોય, એ જ આપ કહેવા માગો છો? ऊंडाई जुदी, गहराई अलग अलग है। देखो, सब राम को उसके बाकी के तीनों भाई प्रेम करते थे, तीनों की गहराइयों में अंतर होगा कि नहीं? प्रेम करने वाले उनके 3 भाई हैं, परंतु तीनों की प्रेम ही कर रहे हैं, वो दूसरा तो कुछ नहीं कर रहे हैं। पर शत्रुघ्न का प्रेम की गहराई, लक्ष्मण के प्रेम की गहराई और भरत के प्रेम की गहराई, इन तीनों में अंतर पड़ता है। ऐसा अब उस जीव को तो उसकी जितनी गहराई है उतनी अनुभूति होगी। तो जब शत्रुघ्न को ऐसा पूछा जाए कि आपको राम के प्रति कितना प्रेम है, तो शत्रुघ्न कहें कि मेरे को राम के प्रति सबसे अधिक प्रेम है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर जितना प्रेम है उतना तो किसी के अंदर होगा ही नहीं। परंतु अब आप लक्ष्मण जी को लो, अब लक्ष्मण जी के प्रेम को तो उनको कंपेयर करेंगे तो लक्ष्मण जी को भी यूं लगता है कि मैं सबसे अधिक प्रेम करता हूं, पर शत्रुघ्न से कई गुना अधिक उनका प्रेम है, तारतम्य बढ़ रहा है। और आप भरत जी के प्रेम को लो तो लक्ष्मण जी से भी कई अधिक प्रेम भरत जी को, ये तरतमता है। तो यहां पर ये होता है, बस बात वही चल रही है, चिंतन वही चल रहा है। विशुद्धि बढ़ने के साथ उसकी गहराइयां बढ़ती जाती। સાતમું 8મું અને 9મું ગુણસ્થાન, એટલે 8મા ગુણસ્થાને પછી ક્ષાયિક સંકિતિત બની જાય છે ને? આ ना, ऐसा नहीं है। દ્વિતીય અપૂર્વકરણ કરે છે ને? द्वितीयोपशम सम्यक्त्व दोनों, क्षायिक संकित भी करता है और क्षयोपशम संकित वाला भी करता है। पर जिसको उपश्रम श्रेणी चढ़ रहा है वो नियम से द्वितीयोपशम करेगा। और क्षयोपशम सम्यक दृष्टि कोई होता है वो भी द्वितीयोपशम करता है, और द्वितीयोपशम करके श्रेणी चढ़ता है और वापस गिरता भी है। इसलिए श्रेणी चढ़ने के लिए क्षायिक संकित जरूरी नहीं है। क्षयोपशम सम्यक दृष्टि भी श्रेणी चढ़ सकता है, परंतु वो श्रेणी चढ़ेगा तो उपशम श्रेणी ही चढ़ेगा। 11वें से जाके वापस आएगा 6ठे गुणस्थान में, 7वें में। फिर अगर मिथ्या दृष्टि हो गया तो पहले तक भी आ सकता। क्षायिक वाला शपक श्रेणी चढ़ेगा ऐसा जरूरी नहीं, वो भी उपश्रम श्रेणी चढ़ करके वापस आता है, पर वो चौथे से नीचे नहीं जाएगा। बस इतना ही अंतर। चलो आगे पढ़े। ये आगे थोड़ा गणित वाला है, इसको केवल पढ़ लेंगे, बाद में समझ लेना। 531 अधकरण का दृष्टांत क्या है? अब ये समान असमान कहा ना, तो इसका दृष्टांत क्या रहे? देवदत्त नामक राजा के 3072 आदमी जो कि 16 महकों में बटे हुए हैं। महक मतलब खंड, खंड महकमा मतलब खंड नंबर 1 में 162 हैं, मतलब इनके 3072 हैं। अब उनको समान असमान कैसे है कि जो पूर्व का ऊपरी तनवर्ती होते हैं वो ही नीचे वर्ती हैं, तो उनके परिणाम एक जैसे कैसे हो सकते हैं वो बता रहे हैं यहाँ, क्योंकि अधकरण में एक जैसे परिणाम होते हैं ना। तो महकमा 1 में 162 है, 2 में 166, 3 में 170, 4 में 174, फिर 5 में 178, फिर 6 में 182, 7 में
86, 8 में 190, 9 में 184, 94, 10 में 198, 11 में 202, 12 में 206, 13 में 210, 14 में 214, 15 में 218, 16 में 222। इतने 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 सेवक रखे हुए हैं। ये 372 हो गए पूरे पूरे। अब पहले महकमे के 162 आदमियों में से पहले आदमी का वेतन 1 रुपया है, दूसरे का 2 रुपया, तीसरे का 3 रुपया। इसी प्रकार एक एक बढ़ते हुए 162वें आदमी का वेतन 162 रुपया है। बराबर? यहाँ तक समझ में आ गया? पहले खंड के आदमियों का वेतन। और महकमे नंबर 2 में 166 आदमी काम करते हैं। उनमें से पहले आदमी का वेतन 40 रुपया है। देखो, पहले में कितना था? 1 का था। अब चालू कहाँ से किया है? 40 से चालू किया है। द्वितीयाधिक का 1-1 रुपया वेतन क्रम से बढ़ता हुआ होने से 166वें आदमी का वेतन 205 रुपया हो गया। 40 का अंतर आ गया इसमें। और महकमे नंबर 3 में 170 आदमी काम करते हैं। सो इनमें से पहले आदमी का वेतन 80 रुपया है। अभी 40 और बढ़ गया। हाँ। और दूसरे तीसरे आदि आदमियों का 1-1 रुपया बढ़ते हुए 170वें आदमी का वेतन 249 रुपया है। बराबर? महकमे नंबर 4 में 174 आदमी काम करते हैं। सो पहले आदमी का वेतन 121 रुपया है। अभी बढ़ गए हैं। दूसरे आदमी का 1 रुपया बढ़ता हुआ 174वें आदमी का वेतन 294 रुपया होता है। इसी प्रकार क्रम से 16वें महकमे में 222 आदमी नौकर हैं। उनमें से पहले का वेतन 651 रुपये और 222वें आदमी का वेतन 912 रुपया है। अब बताते हैं, यहाँ तक तो सारा के। अब मुख्य वस्तु बताते हैं। इस दृष्टांत में पहले महकमे के 39 आदमियों का वेतन ऊपर के महकमे के किसी भी आदमी के वेतन से नहीं मिलता। बराबर है? उनके वो परिणाम अलग ही होंगे। आखिर के 57 आदमियों का वेतन नीचे के महकमों के किसी भी आदमी से नहीं मिलता। शेष वेतन ऊपर नीचे के महकमों के वेतनों के साथ यथासंभव सदृश भी हैं। शेष वेतन मिलते हैं कि जैसे पहले महकमे का मान लो 16वां आदमी था तो वो दूसरे महकमे के 8वें आदमी से उसका वेतन मिल जाए। ये परिणामों की सदृश्यता कहलाती है। इसको सदृश्यता कहते हैं। तो ये दृष्टांत से समझ में आता है। शेष वेतन ऊपर नीचे के महकमों के वेतनों के साथ यथासंभव सदृश भी हैं। इसी प्रकार यथार्थ में भी ऊपर के समय संबंधी परिणामों और नीचे के समय संबंधी परिणामों में सदृशता यथासंभव जाननी। इसका विशेष स्वरूप गोमट सारजी के गुण स्थानाधिकार में तथा छपे हुए सुशीला उपन्यास के 247वें पृष्ठ से लगाकर 263वें पृष्ठ तक में देखना। हाँ, ज़्यादा जानना हो तो वहाँ पर देख लेना चाहिए। आज चलो कोई बात नहीं, नई आवृत्ति होगी। ये सुशीला नाम का उपन्यास बहुत अच्छा उपन्यास है। इसमें कर्णानुयोग का भी बहुत अच्छा वर्णन किया गया। तो ये यहाँ तक ये 3 करण परिणाम थे, पढ़े। कल दोपहर में अपने आगे पढ़ेंगे। हाँ, इससे अपने को ये पता चलता है कि ये सब बुद्धि से नहीं कर सकता है कोई। इतनी गणित होती है, एक एक समय के परिणामों को कोई बुद्धि से, कर्णानुयोग से केवली के ऊपर श्रद्धान होता है कि केवल ज्ञान के बिना ये संभव होता नहीं।
और इससे अपने को हम जितने भी दर्शनों को पढ़ेंगे वगैरह, उससे अपने इस वितराग दर्शन की सूक्ष्मता का भी पता चलेगा। बाकी द्रव्यानुयोग तो लगभग सब जगह समान होगा, पर चरणान योग और प्रथमान योग भी समान होगा। ये दोनों तो सब दर्शनों में समान होंगे, पर चरणान योग की सूक्ष्मता और कर्णान योग की सूक्ष्मता ये इस वितराग विज्ञान का ही, इसलिए इससे अपने सम्यक्त्व की विशुद्धि भी होती। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो हमको सर्वज्ञ देव के प्रति बहुत अधिक मान आएगा और आचार्यों के प्रति भी बहुत अधिक मान। ये अपने व्यवहार सम्यक्त्व को बढ़ाते हैं। सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तद्ध्यानम, पर शांति अनंत सुधामय, प्रणमो पद ते वरते जय। ओ प्रणमो पद ते वरते। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की जय। आनंद घन ओ। जय सद्गुरु।